Hi friends, welcome to session 104A. This is basically guarantee of profits to partner 1. We are studying partnership accounts. I am CA Sunil Arora and you are watching Accounts Up. I'm sure you would recollect जब मैं आपको बता रहा था कि if you want to understand accounts तो आपको किसकी तरह सोचना है. Do you remember that? I told you you have to think like a businessman. अब आप businessman हो, क्या business कर रहे हो? You are doing business of mobile phones, smartphones. You are making smartphones. So what you do is आपने अपना किसी को partner बना लिया. You are Rahul and you have made Rohit as your partner. So Rahul and Rohit आप दोनों partners हो and you are doing the business of smartphones. Now the problem comes कि आप लोगों ने कहा जी हम कैपिटल इन्वेस्ट कर लेते हैं, स्मार्टफोन बनाएंगे, बेचेंगे, सब कुछ करेंगे. अब आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है कैसे करना है. यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस. सो यू गाइस गो टू स्टीव जॉब्स कि मिस्टर स्टीव जॉब, वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ स्मार्टफोन, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस. तो स्टीव जॉब क्या बोलेगा आपको? अरे पागल हुआ है क्या, मैं इतनी बड़ी कंपनी एप्पल में काम करता हूँ, मैं क्यों आऊंगा तेरे साथ. ऑब्वियसली यार, उसको कहोगे यार वी आर मेकिंग यू ओनर, वी आर मेक यू पार्टनर. ही सेड व्हाट आर यू टॉकिंग, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ हियर. सो आपकी पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लूं, पता चले कि भाई 1 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा तो लॉस हो जाएगा. Isn't it? So you tell him, okay, you join us and we'll give you guarantee of profits. वो कहेगा कौन गारंटी दे रहा है भाई? Who's giving guarantee? तो you are Rahul and Rohit and you say कि हम दोनों गारंटी दे रहे हैं. अगर आपका share of profit is less than 1 lakh, then we'll compensate you for this. We'll take lesser share and we'll give. Otherwise, our profit sharing ratio is say equal. But then if your share of profit comes out to be less than this, then we guarantee that we'll compensate you the shortfall amount or the deficiency if we need there. अगर कुछ कम प्रॉफिट हुआ, आपको कुछ कम मिला, तो हम आपको देंगे बाकी सारा अमाउंट, राइट. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट. अब इसमें अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज द अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन? Let us take one example, then we'll come to know what is the accounting implication of this. Let's suppose there are 3 partners A, B and C and they are sharing profits in the ratio of 3:2:1. Now C has been given a minimum guarantee profits of rupees 24,000 कि उसका जो C का शेयर है that will not be less than 24,000 and if there is any shortfall then A and B are going to equally bear this particular deficiency if at all shortfall is there. समझ में आ गया? These are the facts of the case. 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और C को जो है मिनिमम गारंटी हमने दिया है 24,000 प्रॉफिट्स का. और अगर कोई शॉर्टफॉल होगा सो देन A और B वो शॉर्टफॉल पूरे करेंगे और किस प्रोपोर्शन में करेंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में. दिस इज व्हाट द बेसिक फैक्ट्स आर. Now let's suppose there are profits of rupees 90,000. फर्म के प्रॉफिट्स हुए 90,000 रुपीज. तो हाउ विल यू गो अबाउट इट? सो हम एक काम करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस. एक पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं. वी ऑलरेडी स्टडीड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन 102 की सीरीज के अंदर हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया है. वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो अब इसको हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया. So on the credit side we have by net profit transferred from profit and loss account 90,000 rupees. और कोई adjustment हमारे को दी नहीं गई है. So presuming that there is no other adjustment, we distribute the profits to the partners in their profit sharing ratio. और वो profit sharing ratio है 3:2:1. When we distribute these profits, on the debit side we will write to partners current account. A's current account, A's account 45,000. It can be current account or capital account depending upon whether we are following fixed capital or fluctuating capital method. फिक्स का मतलब जब कैपिटल फिक्स रहती है तो हम कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं. फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है फिक्स, तो यू अंडरस्टैंड जो फिक्स्ड है चेंज नहीं हो रही. फ्लक्चुएटिंग का मतलब जहाँ पे वो कैपिटल जो है बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, सो चेंज होती रहती है. सो दैट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. सो व्हाट वी डू इज नाउ अगर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. सो A gets 45,000 rupees, B gets 30,000 and C gets 15,000 rupees. That's how 90,000 are appropriated amongst the partners in their profit sharing ratio. 3:2:1 ratio में हमने distribute कर दिया इसको. Now we have a problem. हमने ये तो profit loss appropriation account तो बना लिया. Now we have a problem कि भाई C को तो हमने profit क्या assure किया था 24,000 और उसका share कितना आया है 15,000. So how much is the deficit?
deficit is 9,000 rupees. So we calculate the deficit. So deficit would be calculated as 24,000 minus 15,000, 9,000. अब हमने क्या करना है कि ये 9,000 हमने C को क्रेडिट देना है, C को कॉम्पनसेट करना है. And who's going to pay it? This is to be paid by A and B. So obviously ये कैश पेमेंट नहीं होता, इसके हम ट्रांसफर एंट्री पास कर देते हैं एंड सब्सिक्वेंटली अकाउंट्स के अंदर सेटल हो जाता है. So we'll be passing the journal entry to make this adjustment. We'll be passing the entry A's capital account debited 4,500, B's capital account debited 4,500 to C's capital account rupees 9,000, being deficit in guarantee given to C fulfilled or compensated by A and B. So this is what we'll be writing in the narration. सो ए एंड बी को डेबिट करके एक किस्म से ये हो गया कि जो उसको सी को हमने देना है, सी को हम क्रेडिट देंगे 9,000 रुपीज़ का एंड ए और बी से हम रिकवर करेंगे. सो इट इज़ रिसीवेबल फ्रॉम ए एंड बी. सो इसलिए ए और बी को हमने डेबिट कर दिया 4,500 ईच. राइट नाउ अब इसका नेट इफेक्ट देख लेते हैं. इसका इफ यू लुक एट नेट इफेक्ट, सो 45,000 रुपीज़ ए का शेयर आया था, 4,500 उसमें से माइनस हो गया ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी गिवन टू सी. सो ए का शेयर रह गया 40,500, बी का शेयर था 30,000, बी के शेयर में से 4,500 माइनस हो गया तो बी का शेयर रह गया 25,500. सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज 15,000, वो 9,000 इनसे इंक्रीज हो गया. सो सी गेट्स 24,000 रुपीज. दैट मीन्स जो हमने कमिटमेंट सी को करी थी कि भाई वील गिव यू एटलीस्ट 24,000 मिनिमम प्रॉफिट, वो हमने फुलफिल कर दी इन दिस पर्टिकुलर केस. राइट, ये टॉपिक्स जो हैं ये साउंड बड़ा डिफिकल्ट करते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स और ये जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी कि भैया उसको मिनिमम एश्योरेंस दिया, क्या किया. व्हेन यू एनालाइज एंड व्हेन यू डू इट सिस्टमैटिकली तो ये बहुत सिंपल हो जाते हैं. और सिस्टमैटिकली क्या करना है, पहले एज पर द अरेंजमेंट जो पार्टनर्स का है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो. फिर जो गारंटी अमाउंट है और जितना उसको मिला उन दोनों को कंपेयर करो. अगर जो उसको मिला गारंटी अमाउंट से ज्यादा है, if what he has been appropriated, what he has been given is more than guarantee amount, then the problem comes to an end. There is no question of guarantee in that particular case. Guarantee ka to there is no need for any adjustment. The problem would arise only in that situation where the guaranteed amount is more than what he is getting now, as we have seen in this particular example. Guarantee is 24,000, he is getting only 15,000. So 9,000 उसको हमने compensate करना है in this particular case. अब 9,000 जो compensate करना है वो कॉम्पनसेट करने के लिए वी पास अ जर्नल एंट्री. और क्योंकि ए और बी हैव एग्रीड टू बियर दिस पर्टिकुलर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी इक्वली, सो 4,500 रुपीज ईच वुड बी डेबिटेड टू ए एंड बी एंड सी वुड बी क्रेडिटेड विद रुपीज 9,000. आई एम श्योर आपको ये वॉट एवर 7-8 मिनट्स वी स्पेंट हियर, आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसको दो वेरिएशन और जल्दी से समझ लेते हैं. प्लीज पे अटेंशन. You have to be quick learner. जल्दी से समझना, मैं बहुत जल्दी से समझा रहा हूं आपको. अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि वेयर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ए और बी जो है उसको इक्वली बेयर करेंगे. गारंटी ऑफ प्रॉफिट सेम है, 24,000 हैज बीन गारंटी, 90,000 प्रॉफिट्स हैं, 3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. द ओनली इशू इज जो गारंटेड अमाउंट है उसके लिए ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ए एंड बी उसको जो है इक्वली बेयर करेंगे. सो बाकी सब चीजें तो सेम रहेंगी. डेफिशिएंसी भी 9,000 रुपीज आ जाएगी. अब प्रॉब्लम ये कि ये 9,000 का बियर लॉस कौन करेगा. सो इन सच अ सिचुएशन द लॉस ऑफ 9,000 वुड बी borne by A and B in the ratio of their mutual profit sharing ratio. That means 3:2 की रेशियो में in that particular case it will be divided. So what would happen in this particular case is 9,000 को अगर हम 3:2 में allocate करते हैं, then A has to bear loss of 5,400, B has to bear loss of 3,600 and C को हमने क्रेडिट देना है रुपीज 9,000. So it will be A's capital account debited rupees 5,400, B's capital account debited 3,600, to C's current account 9,000 rupees. कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ ये चेंज किया कि जो 9,000 रुपीज हमने क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था ए और बी में इक्वली किया था, यहाँ पे इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिकॉज उनकी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है गारंटी लॉस की. अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो जो उनकी म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट मींस जो दोनों की आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है. सो 9,000 का लॉस 3:2 की रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ए एंड बी. अब इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, ए गॉट 45,000 रुपीज जिसको नॉर्मली मिला, 5,400 उसने लॉस बुक किया ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी, सो ही गेट्स नेट अमाउंट ऑफ 39,600. बी ने 30,000 था, 3,600 उसने गारंटी का लॉस लिया, सो ही इज लेफ्ट विद 26,400.
एंड सी का 15,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट था, उसमें 9,000 ऐड हो गया जो उसका गारंटेड अमाउंट 24,000 बनाने के लिए, सो उसका 24,000 बन गया. So total is 90,000 rupees. Total 90,000 has been distributed in this particular manner. एक थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं इसके अंदर. Let's suppose जब आप इसको पार्टनरशिप के लिए गए थे सी के पास, ए और बी, आप लोग दोनों ए और बी हो, हमने एग्जाम्पल में लिया था रोहित एंड राहुल है. अब रोहित और राहुल आप लोग दोनों गए स्टीव जॉब के पास. स्टीव जॉब ने कहा जी मैं तो नहीं आता आपकी फर्म में यार, आपका हो सकता है प्रॉफिट ना आए, मैं तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं तो नहीं आता आपके साथ, तो मुझे तो गारंटी उतना चाहिए जितना मैं अर्न कर रहा हूँ. तो बी ने कहा या राहुल ने कहा ठीक है छोड़ो इसको यार, नहीं लेते, हम खुद ही करेंगे, कोई बात नहीं. तो रोहित ने कहा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, वी नीड हिम सो वी मस्ट टेक हिम. तो बी कहता देख भाई मेरा कोई लेना देना नहीं ये गारंटी से, अगर तूने इसको लेना है पार्टनर और इसके डेफिसिट अगर हुआ तो ये गारंटी तेरे को बियर करनी पड़ेगी, मैं तो इस पार्टी नहीं हूँ, मैं नहीं पड़ता इस झगड़े के अंदर. तो ए एंड ए सेट्स ओके ठीक है लो इसको पार्टनर, मैं जो है ना अगर गारंटी का प्रॉफिट नहीं आया तो आई विल टेक द हिट, मतलब मैं लॉस बियर करूंगा, मैं कॉम्पनसेट करूंगा उसको, राइट. सो इन दिस केस ए और बी दोनों कॉम्पनसेट नहीं कर रहे, खाली ए करेगा. अब क्या होगा, सेम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, सेम डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लो जो 9,000 है. अब ये 9,000 की डेफिशिएंसी किसने बियर करनी है, ए ने. सो सिंपल एंट्री, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9,000 टू सी's कैपिटल अकाउंट ₹9,000. नरेशन के अंदर डाल दो कि भाई बीइंग एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी ऑफ ₹24,000 गिवन टू सी, नाउ रिकवर्ड फ्रॉम ए. दिस इज व्हाट वी राइट इन द नरेशन. अब इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, 45,000 शेयर आया था ए का, 9,000 उसने दे दिया सी को ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी. सो नेट जो बचा उसके पास 36,000 बचा. बी ने 30,000 शेयर था, बी का शेयर इफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज बी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द गारंटी गिवन टू सी. सो बी का शेयर 30,000 ही रहा. सी का शेयर था 15,000, उसमें 9,000 हमने ऐड कर दिया जो कि ए से हमने लिया उसको गारंटी पूरी करने के लिए. सी गेट्स 24,000 rupees. So final distribution of 90,000 rupees is 36,000 to A, 30,000 to B and 24,000 to C. सिंपल फंडा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. हमने 3 सिचुएशंस देखी हैं. गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्विकली अगर समराइज करें, जब किसी पार्टनर को हम एश्योरेंस देते हैं कि मिनिमम शेयर आपका उतना होगा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट. उसके अंदर जो है अगर आपका उस पार्टनर का शेयर गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना है, फिर तो वैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगी, गारंटी का कोई रोल ही नहीं है. अगर उसका शेयर उससे कम बनता है देन डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. डेफिसिट जो है वो बाकी पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना है. सो जो उनका अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर अरेंजमेंट है ओनली वन पार्टनर ए हैज टू बियर, तो सिचुएशन 3 जो हमने डिस्कस किया है वो अप्लाई होगा. अगर ये है कि भाई ए और बी दोनों इक्वली बियर करेंगे तो सिचुएशन 1 अप्लाई होगी कि दोनों 4,500 5,500 बियर करेंगे. थर्ड सिचुएशन इज कि भाई अगर पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू कॉम्पनसेट बट उन्होंने म्यूचुअली उसको लॉस को कोई बियर करने का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, देन इट विल बी द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:2. सो 9,000 के लॉस को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे. हमने ये 3 सिचुएशन देखी, हमने देखा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट और ये 3 सिचुएशन देखी है, राइट. I am sure you must have enjoyed this and you must have understood the concept. We'll take a few more situations in our subsequent chapters 104B onwards. So this will be basically guarantee of profits 1 hai ye, guarantee of profits 2 mein we will be continuing this particular topic itself to complete it. So we look forward to seeing you in our other sessions also. Thank you and bye for now.